that we are going to see once we will solve the sums, don't worry, because that is anyways inner column and outer column. Let's finish with the adjustments now. What is adjustments or what is closing entries? I told you the concept that these are the entries which has not been recorded in the books of accounts. Why these have not been recorded in books of account? Because these might have surfaced in the last month of your year, say March 2022 for 21-22, and for 22-23 you will come to know closing stock आपको कब पता चलेगा साल का? Obviously on the last day of the year. उसके लिए तो आखिरी दिन का इंतजार करना ही पड़ेगा. So closing stock is always an adjustment entry. Can you record it on 1st of April 2022, the closing stock of 23? No, you cannot. You need to wait for the last day of the financial year. Then you can say that this is my closing stock. So there are certain transactions which will be surfacing only in the last month or on the last day of the financial year. For all such transactions, we are going to record closing entries or adjustment entry. ऐसे सारे transaction के लिए हम closing या adjustment entries लिखेंगे. And that is what it is called as closing entries or adjustment entries. तो अभी नीचे जो सारी entries दी है बेटा, ये सारी क्या है? These are all closing entries or adjustment entries. And obviously, as these are recorded for the first time, means neither it is there in the journal nor in the ledger. अब ये journal ledger में नहीं है, मतलब trial balance में आने का chance है क्या? है ही नहीं. Am I right? Because जो journal में होता है वही ledger में आता है और ledger से आगे चल के कहाँ पे आता है? Trial balance में आता है. That is the accounting process we have seen. Am I correct? But these are the entries which are surfaced right now. So we need to give there both of the effects. That is debit effect as well as credit effect. That is how, do remember, every adjustment entry, every closing entry should have how many effects? Two effects. One debit, another one is credit. So हर adjustment entry के दो effect होंगे. Then what about the trial balance? Trial balance items will be having only single effect. कल हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट का आइटम होगा तो कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा? It will go on trading account debit side or profit and loss account debit side or balance sheet asset side. Why? Because trial balance debit side means debit all expenses and losses of the business. Trial balance debit side means debit all assets, properties and possessions of the business. यानी या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस या लॉस होगा, और वो असेट होगा तो बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा. उसी तरह से इफ इट इज a credit item in a trial balance, then credit all incomes and gains of the business and credit all liabilities and claims of the business. तो इनकम और गेन कहां पे जाते हैं बेटा? या तो ट्रेडिंग का क्रेडिट इफ इट इज डायरेक्ट इनकम, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट इफ इट इज इनडायरेक्ट इनकम, और इट विल गो ऑन बैलेंस शीट liability side if it is a liability. Am I correct? This is what the trial balance bifurcation. And do remember, trial balance item will have a single effect. Whereas all adjustment entries, all closing entries should have two effects. Why? Because these have never been recorded in the books of account. क्योंकि इनको रिकॉर्ड ही नहीं किया है. जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, बैड डेट्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है. All these are surfaced in the last month or on the last day of the financial year, and these have never been recorded. So now we are going to record them in the form of closing entries or adjustment entry. So every adjustment entry should have how many effects? Two effects, and every item should have a single effect. आइटम का सिंगल इफेक्ट होगा और एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होंगी. पहले एडजस्टमेंट देखते बेटा. पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक. वैसे क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है? इट इज अ डायरेक्ट इनकम. एम आई करेक्ट? Yes or no? Because there are direct income in the form of sale of goods and services as well as closing stock. Closing stock को कहां पे ट्रांसफर करना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. इसलिए उसकी जर्नल एंट्री देखिए क्या हुई है. इट इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. व्हाई? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज एन असेट ऑफ द बिजनेस. यस और नो? क्योंकि ये बेचा जाएगा तो पैसा मिलने वाला है, लेकिन आज नहीं कल, क्योंकि आज के लिए तो ये क्लोजिंग स्टॉक बन गया अभी. So maybe tomorrow once the business will open, you are going to earn out of it, and that is how it is going to be income. So closing stock की entry देखिए. वैसे इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे? What are the two effects of closing stock? One is trading account credit side and another one is balance sheet asset side. There is another rule for closing stock. The rule says that closing stock is valued at cost price or market price, whichever is lower. बराबर है क्या? ये हमने कहाँ देखा था? Conservatism concept of accounting, which says that imagine for losses but don't imagine for
profits. Anticipate losses but don't anticipate profits. Hence closing stock is always valued at cost or NRV. Closing stock किस पे रिकॉर्ड करते बेटा? Cost or NRV. NRV का मतलब क्या है? Market price. So closing stock is valued at cost or NRV. NRV is equal to what? Market price. Whichever is lower. ये रूल है. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर आपको दिया होगा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, तो कौन सा वैल्यूएशन लेंगे? सपोज कॉस्ट प्राइस दिया 2 लाख और मार्केट प्राइस दिया 2,20,000. तो रूल क्या बोलता है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर. तो कौन सा वैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे बेटा? 2 लाख या 2,20,000? 2 लाख, बिकॉज रूल इटसेल्फ सेज दैट ऑलवेज वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर. इसलिए इस पे हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को. तो दैट इज व्हाट द क्लोजिंग स्टॉक देयर. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नो depreciation. Depreciation is paid or provided. A business pay rent, a business pay advertising. Am I correct? A business pay insurance, a business pay salaries. Yes or no? Have you ever heard business has paid depreciation? Or we usually hear that business provided depreciation. Imagine you purchased a car in 2018, a brand new car, which is close to your heart, and it is costing rupees 20 lakh. When you purchased 2018, you enjoyed like anything there till 2022. It is almost 2022 now ending. Does the car is having same purchase price right now or it has been depreciated? It is depreciated. अब देखो depreciation का मतलब क्या है? A permanent and gradual reduction in the value of fixed assets is called as depreciation. Depreciation क्या है? A permanent and gradual reduction in the value of fixed assets or tangible assets is called as depreciation. For example, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car. These assets are only subject to depreciation. आपने 2000 की नोट एक बार जब निकली नहीं तो मस्त पिंक नोट आपने ले ली और रख दी आपके वॉलेट में. 5 साल से संभाल रहे, उसमें डिप्रिसिएशन होता है क्या? नहीं होता. आज भी उसका वैल्यू 2000 ही है, बट हो सकता है उसकी परचेसिंग पावर में कमी आ गई है, क्योंकि जो चीज 2000 में 2017 में खरीदी जा सकती थी, आज हो सकता है उसके लिए 2500 लगे, 3000 लगे या 4000 भी लगे. ऐसा हो सकता है ना. लेकिन नोट का कुछ डिप्रिसिएशन हुआ क्या बेटा? नोट तो वैसी है 2000 की. The 2000 rupee note is one and the same, and it is still carrying the same purchasing power of rupees 2000. So only fixed assets or tangible assets are subject to depreciation, like land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car, motorbikes and all those. Only open land is not subject to depreciation, क्योंकि land का value बढ़ता है या घटता है. Open land depreciate नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कुछ कर ही नहीं रहे आप. अगर वो एरिया का वैल्यू बढ़ गया तो लैंड का भी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. सो डू रिमेंबर, लैंड इज ओनली one of the fixed asset which is not subject to depreciation. It can be subject to depreciation or appreciation depending on rate of the land in that particular area. लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, मोटर वैन है, तो इस पे डिप्रिसिएशन होगा. अब 10 साल बाद आप ये बिल्डिंग में आएंगे तो इसी तरह से स्ट्रक्चर रहेगा क्या? या इसको रिनोवेट करना पड़ेगा? हो सकता है इसको गिरा के दूसरा भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. am I right? क्योंकि द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बिकम ओल्डर. लैंड की वैल्यू बढ़ेगी बिकॉज ये एरिया एकदम प्राइम एरिया है ना. यहां पे लैंड के भाव तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे जाने का कोई चांस है क्या? नहीं है. लेकिन स्ट्रक्चर को तो फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रिनोवेट करना पड़ेगा या रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड. am I right? So that is how I am talking about depreciation is charged only on tangible assets or fixed assets. Depreciation किस पे चार्ज करते हैं? Tangible assets या fixed assets पे. What is depreciation? It is permanent and gradual reduction in the value of fixed assets. Is it paid or provided? It is provided. Why it is not paid? Because depreciation is a non-cash expenditure. क्या करते हो आप depreciation के साथ फिर? क्योंकि एक्सपेंडिचर तो बताया, बट आपने कुछ इससे पे किया क्या? नहीं किया. अब आप यही इमेजिन कीजिए, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 2018 में. क्या खरीदा आपने? प्लांट एंड मशीनरी. इट इज अ मशीनरी विच इज फैंटास्टिक, विच इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट. लेकिन इसका इकोनॉमिक लाइफ कितना होगा? 5 साल सिर्फ. मतलब 5 साल के बाद ये मशीनरी की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड यू कैन नॉट यूज इट. कार का भी ऐसे होता है ना, 15 साल वैल्यू होती है, 10 साल वैल्यू होती है. am I right? तो ये प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू ही कितना है बेटा?
5 साल, तो 2023 में इसका वैल्यू खत्म होगा या नहीं? तो अब 2023 में जैसे ही वैल्यू खत्म होगा, आर यू सपोज टू परचेस न्यू प्लांट एंड मशीनरी इफ यू वांट टू अनडिस्टर्ब प्रोडक्शन, यस और नो? सो हाउ यू विल परचेस? फॉर दैट यू रिक्वायर मनी. ये पैसा कहां से आएगा? दैट मनी कम्स फ्रॉम दिस डेप्रिसिएशन विच यू प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी ईयर. हर साल जो डिप्रीशिएशन आपने चार्ज करके रखा है, दैट अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर परचेसिंग अ न्यू असेट व्हेन एग्जिस्टिंग असेट बिकम्स आउटडेटेड. सो दैट इज व्हाट डिप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड एज पर्पज. डिप्रीशिएशन का पर्पज क्या है? टू परचेस अ न्यू असेट व्हेन एग्जिस्टिंग असेट बिकम्स आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज. और कभी ना कभी ऐसा आने वाला है टाइम जब वो मशीनरी की वैल्यू खत्म हो जाएगी और आपको नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, हाँ या ना? या आप सालों साल एक ही मशीनरी यूज करेंगे? 20 साल, 50 साल, 100 साल आप भी गए, फिर भी मशीनरी काम कर रही है. ऐसा होता है क्या? नहीं होता. उसका भी अपना एक इकोनॉमिक लाइफ है. 5 साल, 10 साल, 15 साल. अभी जो एग्जांपल मैंने लिया उसमें कितना साल है बेटा? 5 years. तो डिप्रीशिएशन के बारे में 3 चीजें याद रखनी है. डिप्रीशिएशन इज अ परमानेंट एंड ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स और टेंजिबल असेट्स. नंबर 1, depreciation is an expenditure? Yes. But is it a normal expenditure? No. It is which kind of expenditure? It is a non-cash expenditure. जिसमें हम किसी को कुछ पे नहीं करते, हम प्रोवाइड करके डिप्रीशिएशन घर में ही रखते हैं या हम बिजनेस में ही रखते हैं. What does it mean? That depreciation is internal source of financing or funding. What is to be done with this? You are going to purchase a new asset when existing asset becomes outdated with this depreciation provision. मान लो 5 करोड़ का असेट है और वैल्यू कितनी है? इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 5 साल. असेट कितने का है? 5 करोड़ का. हर साल डिप्रीशिएशन कितना देंगे? 1 करोड़. हर साल 1-1 करोड़ देंगे तो 5 साल बाद कितना वैल्यू हमने बाजू में निकाल के रखा? 5 करोड़ निकाल के रखा. अब 5 साल बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई? 0. अब नई मशीनरी खरीदनी है, कम से कम 5 करोड़ तो चाहिए ना. हो सकता है 7 या 8 करोड़ लगे अभी, लेकिन तुम्हारे पास रेडी कितने हैं? 5 करोड़ रेडी. यू हैव प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ डिप्रीशिएशन. ये किसी को पे किया क्या आपने? आप कार लेते हो, उसका डिप्रीशिएशन होता है, आप जाते हैं शोरूम वाले के पास, ये ले डिप्रीशिएशन तेरा? नहीं. वी चार्ज इट एंड वी कीप इट विथ आवरसेल्फ टू परचेस अ न्यू असेट व्हेन एग्जिस्टिंग असेट बिकम्स आउटडेटेड. सो दैट इज व्हाट डिप्रीशिएशन. वैसे डिप्रीशिएशन बिजनेस के लिए क्या है? लॉस? यस और नो? एक्सपेंडिचर? यस, ये लॉस है एक तरह का या फिर एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. सो डिप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. किस पे चार्ज किया डिप्रीशिएशन आपने? आपने डिप्रीशिएशन किस पे चार्ज किया बेटा? यू चार्ज इट ऑन फिक्स्ड असेट्स. सो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डिप्रीशिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, फिक्स्ड असेट इज अ रियल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये देखिए क्या है जर्नल एंट्री डिप्रीशिएशन की. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव फिक्स्ड असेट अकाउंट. क्या क्या आ सकता है यहाँ पे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कोई भी असेट आ सकता है. और ये डिप्रीशिएशन को बाद में क्या करना है? वी नीड टू ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इट इज बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट. एंटायर बैलेंस ऑफ डिप्रीशिएशन शुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस देयर. तो जर्नल एंट्री 2 है डिप्रीशिएशन की. पहली क्या है? इट इज डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट. कैसे आई एंट्री? समझ में आया ना? Depreciation account is a nominal account, fixed asset account is a real account. Hence debit all expenses and losses of the business and credit what goes out. Depreciation होने की वजह से मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है ना, मतलब asset is going out and depreciation क्या है? एक्सपेंडिचर है. Hence debit depreciation and credit asset account. और फिर depreciation को क्या करो? ट्रांसफर करो. कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. क्यों? बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. बताओ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक में समझ में आया? 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड. डिप्रीशिएशन के 2 इफेक्ट कहां पे होंगे? What are the 2 effects of depreciation? Deduct from respective fixed asset, balance sheet asset side and show it on profit and loss account debit side. ये देखिए बेटा, उन्होंने बड़ा अच्छा एक कॉलम करके दिया है, टेबल करके दिया है फॉर ऑल एडजस्टमेंट. पहला क्लोजिंग स्टॉक का, उसकी एंट्री, फिर उसके 2 इफेक्ट. दूसरा डिप्रीशिएशन का, उसके 2 एंट्रीज और फिर उसके 2 इफेक्ट. बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट एंट्री और एवरी क्लोजिंग एंट्री शुड हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? 2 इफेक्ट्स.
हर क्लोजिंग एंट्री, हर एडजस्टमेंट एंट्री के इफेक्ट कितने होने हैं? 2 इफेक्ट होने हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट देख सकते हैं। उसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रीशिएशन के भी 2 इफेक्ट आप देख सकते हैं। एक डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न्ड असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर और मोटर कार फ्रॉम बैलेंस शीट असेट साइड। और दूसरा इफेक्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बताइए, समझ में आया क्या? Any doubt till here? What is depreciation? It is a non-cash expenditure. It is an internal source of financing. It is a permanent and gradual reduction in the value of fixed assets or tangible assets, like land and building, plant and machinery, furniture and fixture, or motor car. Do remember, students, intangible assets are not subject to depreciation. Intangible assets are not subject to depreciation. Parle G is an intangible asset. It is a trademark. Am I correct? डेटॉल, कैडबरी, मैगी, इसका वैल्यू कम हो गया या बढ़ गया? अभी बढ़ गया है ना? कितने सालों से देख रहे हैं इसको। ऐसा कभी टाइम आया इसका वैल्यू कम हो गया? मैगी का एक बार कम हुआ था, वैसे कुछ उसके बारे में प्रॉब्लम आया था तो हुआ था, वरना ये सारे ट्रेडमार्क का वैल्यू कैसे होता है? बढ़ते ही जाता है। डू रिमेंबर, इंटेंजिबल असेट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू डिप्रीशिएशन, ओनली टेंजिबल असेट्स एंड दैट टू फिक्स्ड असेट्स। कैश का एग्जांपल बोला मैंने, 2000 का नोट 2017 में भी वही और 2022 में भी वही संभाल के रखा है, बस ऐसा कोई डिप्रीशिएशन का चांस उस पे नहीं है। गेटिंग डिप्रीशिएशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप कोई एक्सपेंसेस पे नहीं करते तो उसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग। एम आई करेक्ट? इफ एनी एक्सपेंसेस यू आर नॉट पेइंग, व्हाट दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज यूजुअली आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को और क्या बुलाते हैं? What are the other names given for outstanding? Can I say unpaid? Yes or no? Can I say due but not paid? बराबर है क्या बेटा? और finally one more we can say, that is accrued. Accrued मतलब what? देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं है। This is one part there. अब ये दोनों तरफ से हो सकता है। जिसको आपको पे करना है आप बोलेंगे it is outstanding, मतलब due but not paid, लेकिन वो क्या बोलेगा? वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलेगा या आउटस्टैंडिंग इनकम बोलेगा? रिसीव करने वाला बोलेगा कि इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम, उसके लिए भी वही है, लेकिन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड चेंज हुई है। आपके लिए क्या है? ड्यू बट नॉट पेड। उसके लिए ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, आपके लिए ड्यू बट नॉट पेड है। आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है, उसके लिए क्या है? असेट है। थोड़ा चेंज है। So if there is certain outstanding expenses like rent, commission, interest, advertising, wages, salaries, मतलब ये देने हैं लेकिन अभी तक आपने नहीं दिए, तो इसके इफेक्ट क्या रहेंगे? सीधी बात है, 2 इफेक्ट रहेंगे। एड इनटू कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर, ये कहां पे रहेंगे एक्सपेंडिचर? आइदर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और दूसरा इफेक्ट कहां पे देंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है, इसके इफेक्ट अभी तक दिए है ही नहीं, अभी इफेक्ट दे रहे इसके। Have we recorded earlier these adjustments? No. These are there in the last month of the financial year or on the last day of the financial year surfaced, and hence we are recording in the form of adjustment entries. इसलिए हम उसको कौन से फॉर्म में रिकॉर्ड करें बेटा? क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो कोई भी अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर दिया तो उसके 2 इफेक्ट रहेंगे। क्या? Add into concerned expenditure, trading account debit side or profit and loss account debit side, and what is the second effect? Balance sheet liability side. अब ये एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं बेटा, जो आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको मैं अगर इनकम कर दूं, ये अभी मैंने क्या लिखा है? एक्सपेंसेस, बराबर है? कैन यू सी दिस एवरीबॉडी? अगर यही सारी चीजों को मैं बोलूंगा ये सारे आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अभी क्या है? इनकम है। ये आपको पे करने थे, अब आपको क्या करना है? रिसीव करना है। इफेक्ट सेम रहेगा क्या? नहीं। पहले हमने बोला ऐड इनटू कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी है। अब क्या बोलेंगे? अभी बैलेंस शीट की एसेट साइड है। क्यों? क्योंकि मिलना है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। और उसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा तनिष? पहला तो बैलेंस शीट की एसेट में इसने बराबर बोला, दूसरा भी ऐड होगा कहां पे? पहले एक्सपेंडिचर में ऐड कर रहे थे, आप किस में ऐड करो? इनकम में ऐड करो, ऐड इनटू रेस्पेक्टिव इनकम। बट ऐसे इनकम कहां पे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। व्हाई नॉट ट्रेडिंग? क्योंकि ट्रेडिंग के क्रेडिट में सिर्फ डायरेक्ट इनकम होता है, एक सेल्स और दूसरा
क्लोजिंग स्टॉक, तो वहां पे होने का कोई चांस नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का इफेक्ट क्या होगा, एड इनटू कंसेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि ये मिलना है लेकिन मिला नहीं है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, देना है लेकिन अभी तक आपने दिया नहीं है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने बोला, साल में आपको 12 महीने की सैलरी देनी है, आपने 10 महीने की ही दी है, तो और 2 महीने की क्या हुई आउटस्टैंडिंग। बट ड्यू बट नॉट पेड या ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इट इज ड्यू बट नॉट पेड, सो एड इनटू सैलरी फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट शो अंडर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एनी डाउट इनटू दिस, समझ में आ रहा है आउटस्टैंडिंग बेटा? ये देखिए आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट उन्होंने यहां पे दिया है, ये देखिए आउटस्टैंडिंग और अनपेड एक्सपेंसेस, उसका जर्नल एंट्री क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है बेटा, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। दो इफेक्ट देखिए आउटस्टैंडिंग के, एड टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड शो ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। यहां पे ये लिखना मत भूलिए बेटा, एड टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपेंसेस तो डेबिट में ही रहेंगे, बराबर है, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। इसके साथ पांचवा एडजस्टमेंट देखिए, आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम, जर्नल एंट्री क्या हुई, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। व्हाई? इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग, योर असेट इज इंक्रीजिंग, इट शुड बी डेबिटेड, यस और नो? तो अक्रूड इनकम आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है, असेट है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, उसके दो इफेक्ट देखिए बेटा, एड टू पर्टिकुलर इनकम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये इनकम है तो P&L की क्रेडिट में आएगा, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड में आएगा, बिकॉज इट इज इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। चेंज क्या बोला मैंने यहां पे, सिर्फ यहां पे एड टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखना है, डेबिट साइड, क्योंकि यहां पे उन्होंने क्रेडिट मेंशन किया। देखो यहां पे किया क्या क्रेडिट मेंशन, इनकम में, इनकम में क्रेडिट मेंशन किया क्या किया, वो देखो आखिरी में, एड इनटू पर्टिकुलर इनकम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा देखा हमने एडजस्टमेंट अभी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस अक्रूड बट नॉट पेड, उसी के साथ आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब आखिरी के दो एडजस्टमेंट देखेंगे आज के लिए, एंड दैट इज व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले आउटस्टैंडिंग मतलब देना है लेकिन अभी तक आपने नहीं दिया, अभी क्या देखते हैं, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब नहीं देना है लेकिन आपने एडवांस में दे दिया। So if your financial year is 1st of April 2021 to 31st March of 22, are you getting me? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का फाइनल अकाउंट बना रहे, तो ये टाइम हुआ 12 महीने का, बराबर है। तो आपने एक्सपेंसेस लॉसेस इसी 12 महीने के लिए रिकॉर्ड करनी चाहिए। इनकम एंड गेन शुड बी रिकॉर्डेड फॉर द सेम 12 मंथ्स। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा आइटम है जो आपने पे किया 30 जून 2022 तक। Insurance is one of the expenditure which you have paid till 30th June 2022. Have you paid in advance or it is outstanding? You paid in advance. Why? Because you are supposed to pay up till 31st of March 2022. लेकिन आपने कब तक पे कर दिया? 30 जून 2022. अब पे तो कर दिया. Can I say that it is paid in advance? For 21-22 it is paid in advance. If it is recorded for 22-23 then it is for the same year. Am I right? But you have paid in 21-22 and you paid in advance for 22-23. How many months? 3 months it is prepaid. Am I correct? How many months it is prepaid? 3 months it is prepaid. जैसे आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे, प्रीपेड को क्या करेंगे, माइनस करो। क्यों? क्योंकि वो देना है लेकिन दिया नहीं, और ये नहीं देना चाहिए लेकिन आपने एडवांस में दे दिया। एंड दैट डजंट बिलोंग टू दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट बिलोंग्स टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ, ये 22-23 होता तो उसी साल में रिकॉर्ड करते, लेकिन ये 21-22 है, लेकिन आपने पे किया 22-23 का, सो इट इज पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिडक्ट फ्रॉम सर्टेन कंसेंट एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड शो इट ऑन बैलेंस शीट असेट साइड। सिंपल एग्जांपल आपके समझने के लिए। अभी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर 2022, बराबर है। आपने रेंट दिया आपके ओनर का नवंबर 2023 तक। रेंट कब तक दिया, नवंबर 2023 तक। वैसे अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 22 और 23, कब खत्म होगा ये, 31 मार्च 2023 तक, बराबर है। अब फाइनल अकाउंट बनाने बैठ गए आप, कितने महीने का एडवांस पे कर दिया रेंट आपने 22-23 के हिसाब से,
22-23 के हिसाब से आपने 8 महीने का पे किया बेटा एडवांस में, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक एक्सेप्टेड है, तब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 नवंबर 2023 तक एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने, हाँ या ना? अदरवाइज दैट बिलोंग्स टू द ईयर 2023 एंड 24। लेकिन आपने पे कब किया? 22 और 23 में ही पे किया। आपने एडवांस में पे किया या नहीं? तो अब इसके फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो पे तो कर दिया, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? शो इट ऑन बैलेंस शीट असेट साइड। व्हाई? बिकॉज यू पेड इन एडवांस, बिकॉज यू पेड इन एडवांस। और दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे? डिडक्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जो एक्स्ट्रा आपने पे किया है, एडवांस जो आपने पे किया है, उससे माइनस करो। और दूसरा इफेक्ट बताओ बैलेंस शीट की असेट साइड में। जिस तरह से एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे किए, एट टाइम्स यू रिसीव इनकम इन एडवांस। ऐसा हो सकता है ना कि आपको बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया अगले 3 महीने का? ऐसा बहुत कम बार होता है, होता ही नहीं लगभग। लेकिन ऐसा फाइनल अकाउंट्स में हो सकता है कि कुछ इनकम आपको एडवांस में मिले। जैसे कि आपने आपके ओनर को एडवांस में रेंट दिया, अब वो भी एडवांस इनकम बोलेगा ना, ये सुनो। वो अगर फाइनल अकाउंट बना रहा है तो वो भी बताएगा ना दिस इज एडवांस इनकम। तो उसके लिए ये क्या हुआ? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एम आई राइट? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस के इफेक्ट क्या दिया आपने? डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। अब देखिए, अगर आपने एडवांस में रिसीव किया तो उसके इफेक्ट क्या है? प्री रिसीव्ड इनकम डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न्ड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। जिसमें एक्स्ट्रा मिला उससे माइनस करो और उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में बताओ। क्यों लायबिलिटी में बताओ? क्योंकि ये साल से बिलोंग करता ही नहीं, ये बिलोंग करता है अगले साल से, और आपको एडवांस में मिल गया है तो कंसर्न्ड इनकम से माइनस करो और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बताओ। कितने एडजस्टमेंट देखे बेटा हमने? 6। नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। दूसरा क्या देखा हमने? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के 2 इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न्ड असेट, कंसर्न फिक्स्ड असेट, टेंजिबल असेट, बैलेंस शीट असेट साइड। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके साथ हमने क्या देखा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, अनपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस अक्रूड बट नॉट पेड। इसके 2 इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट एड इनटू कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर, सॉरी एड इनटू कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि पे करना है लेकिन अभी तक पे नहीं किया। Add into concerned expenditure, trading account or profit and loss account debit side. Second effect, it reflects the liability as it is due but not paid, hence balance sheet liability side. फिर outstanding income देखा हमने, add into concerned income profit and loss account credit side and balance sheet asset side. Why? Because it is income due but not received. उसके साथ हमने देखा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, सो डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न्ड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड। क्यों? क्योंकि ये एडवांस में पे किया है। एंड लास्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि मिलना नहीं चाहिए लेकिन आपको एडवांस में मिल गया। तो 6 एडजस्टमेंट वी हैव सीन राइट नाउ। नंबर 1 इज क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 2 इज डेप्रीशिएशन, number 3 is outstanding expenses, number 4 is outstanding income, number 5 is prepaid expenses and number 6 is pre-received income। बताइए बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या? डेप्रीशिएशन मैंने जो बोला वो समझ में आया? उससे ज्यादा एक्स्ट्रा यहां पे लिख के दिया, आप पढ़ सकते हैं। डेप्रीशिएशन के बारे में फिर से 4 लाइन बताता हूं। डेप्रीशिएशन इज अ परमानेंट एंड ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स or tangible assets, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car, etc. Depreciation is a non-cash expenditure and it is popularly known as an internal source of financing. Depreciation क्या है? Non-cash expenditure है and it is known as an internal source of financing. Why internal source of financing? Because it is never paid, it is provided. Then what is done with depreciation? We purchase a new asset when an existing asset becomes out of use or outdated with this provision of depreciation. So that is what the entire thing of depreciation. उसके 2 journal entry बोले, depreciation to fixed asset account and profit and loss account debit to depreciation account. ये एंट्री हमने depreciation के देखे। बताइए ये 6 एडजस्टमेंट में कोई डाउट है क्या? Are you getting this? Any doubts are most welcome. कोई डाउट है स्टूडेंट्स? साइदन्या, ईशा, any doubt into this one please?